everyone, students. After the topic states of matter, today we are to start the next chapter. इसका नाम है chemical equilibrium. Actually, any chemist he desire to know the three things about the chemical reaction. क्या होता है वो चीजें? The first one is nothing but the feasibility of the chemical reaction. Second thing we can say here the velocity of the reaction, and third thing he wants to know is nothing but the extent of the reaction. What is the meaning of the term here feasibility? You know, अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दिया है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो वो केमिकल इक्वेशन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी. सो वेदर द गिवन रिएक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, दिस इज नथिंग बट नोन एज अ फिजिबिलिटी. ओके, तो ये हमें पता चलेगा बाय द टर्म दैट इज नोन एज अ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट ईयर, आई मीन इन द 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन वी कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. इसके बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट ईयर 12 साइंस में. ओके, एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हुआ है ये हमें मालूम पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ वी कैन से हियर द टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम. सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों हमें पढ़ना है, ये है इसका रीजन. ओके, नाउ सी, बिफोर दैट यू शुड नो सर्टन थिंग्स. जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिएक्टेंट. The substances which are taking part in the chemical reaction, they are known as reactants. For example, you know, A plus B, they will react together to form C and D. So यहाँ पे C और D जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं products. ठीक है. So the new substances which are formed as a result of the chemical reaction, they are called as products. Okay, and the process of conversion of reactant into product is known as chemical reaction. ठीक है. So the process of conversion of reactants into product, it is known as chemical reaction. ठीक है. तो in this chapter we have to study the two main types of reaction. Actually वो है first one, you know that irreversible reaction, and the second one is nothing but the reversible reaction. ठीक है. Now the reaction that takes place only in a single direction. For example, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, just like the spreading of a fragrance of the flower in the room is an example of irreversible reaction, or we can say process. Okay, then the smoke which is produced by the burning incense, you know, it is also an example of irreversible reaction. Even the waterfall, or we can say here, जब भी पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो कभी सोचा है आपने कि उसका जो डायरेक्शन है क्या कभी चेंज हो सकता है?
No, the direction of the waterfall will never change. So all these are the examples. They are nothing but the examples of irreversible reaction. ठीक है? The reaction that takes place only in a one direction and which cannot be reversed is known as irreversible reaction. Okay? तो कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट जो है, reactant will react together to form the product, suppose C and D here, but C and D again they will react together to give back the reactant. ऐसे reactions को हम लोग बोलते हैं reversible reactions. The reactions in which reactants react together to form the products and the product form again react with each other to form the reactant again. Such a kind of reactions are known as reversible reactions. तो ऐसे ही reversible reactions के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में in details, and various concepts like equilibrium constant, what is meant by dynamic equilibrium, what is meant by physical equilibrium, what is meant by chemical equilibrium. Okay? तो देखिए, to understand the concept of reversible reaction in proper manner, the experiment is given here in your textbook. In the try this, जो आपके textbook में दिया है, यही मैंने यहाँ डायग्राम निकाला है. So in this experiment, you have to take here suppose 4 grams of cobalt chloride. अगर हमने यहाँ पे लिया 4 ग्राम ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड और उसमें हमने अगर ऐड किया 40 ml ऑफ वाटर, 40 ml ऑफ वाटर अगर हमने इसमें ऐड किया, देन वी विल गेट हियर रेडिश पिंक कलर. ठीक है, हमें मिलेगा रेडिश पिंक कलर. रेडिश और पिंक में थोड़ा सा गैप चाहिए यहाँ पे. आई विल लेट हियर रेडिश पिंक. ठीक है, और रेडिश पिंक कलर में आने के बाद इफ वी ऐड हियर 60 ml of HCl solution, HCl here, if we add here 60 ml of HCl, then we can get here the solution color as violet. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका कलर होगा वॉयलेट कलर. अभी इस सॉल्यूशन में से 5 ml सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लेना है और वो 5 ml सॉल्यूशन जो रहेगा हम इसे पुट करेंगे इन द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, और वी कैन से द मिक्सचर ऑफ आइस, यस, आइस प्लस वाटर. Then from this solution 5 ml solution अगर हमने इसको पुट किया आइस और वाटर के मिक्सचर में, then we can get the pink color solution. तो ये जो आपको कलर मिलेगा ये है पिंक कलर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा. Now see, the mixture is of ice and water, so we can say it's a ice cold condition will be there. At this condition the solution will change to pink color. Okay, but now if you put the same test tube in hot water, जिसका यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो है 90 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा. Then the color of the test tube it will change to blue. जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पर्पसली ब्लू कलर, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, पिंक कलर. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. देखिए, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि हमें वॉयलेट कलर क्यों मिला था. यू कैन सी, ये जो साइन मैंने यहाँ पे दिया है, ये साइन आपने इससे पहले कहीं देखा नहीं होगा, मे बी इन द प्रीवियस ईयर, बट दिस साइन इज
साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को मेंशन करने के लिए, आई मीन शो करने के लिए हम लोग हमेशा ये साइन यूज करेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये साइन, सेम साइन यहाँ पर भी है। तो देखिए पिंक कलर का जो सॉल्यूशन था उसको हमने हीट किया और एट व्हेन इट इज पुट in a hot water having a temperature 90 degrees Celsius, then the solution will change to blue color। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कराया तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिलेगा। एट लो टेम्परेचर यू आर गेटिंग पिंक कलर, एट हाई टेम्परेचर यू आर गेटिंग द ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन ये सवाल अभी हमें जानना, मतलब उसका आंसर में जानने का है, व्हाई द सॉल्यूशन इज हैविंग द वॉयलेट कलर। सी, जब पिंक और ब्लू दोनों सॉल्यूशंस प्रेजेंट होंगे इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द रिजल्टेंट कलर विल बी वॉयलेट। वॉयलेट कलर ऑफ द सॉल्यूशन indicates that we are getting here the equilibrium condition, that is called as a chemical equilibrium. Okay, in ice cold condition the color of the solution is pink. I mean in a when the test tube is kept in a cold water we will get the pink color. When the test tube is kept in a hot water then we are getting the color of the solution as a blue. But when the equilibrium is achieved, here we have got the equilibrium condition. At that time we are getting the combination of these two colors, it is nothing but the violet color. Okay, so जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, can you tell what does violet color of the solution in above indicate? So उसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, violet color of the test tube indicates that the chemical equilibrium has been established between the reactants and the products. इसी इक्वेशन को अगर हमें, मतलब इसी रिएक्शन को अगर हमें लिखने का है इक्वेशन के फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये है पिंक कलर का सॉल्यूशन जो कि आपको दिखाई दे रहा है। Okay, and in that there is the addition of 4Cl minus. Obviously this Cl minus will came from HCl. इसको हीट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग कोबाल्ट क्लोराइड। तो हीट करने के बाद हमें मिलेगा ब्लू कलर वाला सॉल्यूशन। ओके, एंड प्लस H2O। अगर हमने यहाँ पे यही रिएक्शन को रिवर्स किया तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कूल किया तो हमें यहाँ पे वापस पिंक कलर मिलेगा। So when the heat is used, we are getting the blue color. When ice cold condition is used or when it is cooled, we are getting the pink color. So this equation is nothing but indicates the reversible reaction. Reversible reaction को मेंशन करने का जो तरीका है ये होता है इस तरीके का एरो। अभी देखिए इस रिएक्शन, मतलब इस इक्वेशन में जब रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, आई मीन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। बट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्स, वी कैन से इट एज अ बैकवर्ड रिएक्शन और वी कैन से इट एज अ रिवर्स रिएक्शन। सो द रिएक्शन which can proceed in both the directions, forward as well as reverse, are called as reversible reactions. Reversible reactions will never go to completion. कैसे? क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे आपको मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट they will again react with each other to form the reactant again. So reaction will be continue. Okay, but we can get here the chemical equilibrium. As in this example, we are getting the violet color. Okay, so this is the explanation I think for this. I think you should write down all these things properly in your notebook.
लेट्स सी नाउ दिस टर्म्स प्रॉपरली विद देयर डेफिनेशंस. तो पहला यहां पे है रिवर्सिबल रिएक्शंस. द रिएक्शन which do not go to completion and takes place in forward and reverse directions simultaneously it's called reversible reaction. Okay, so the reactions which do not go to completion, as I told you, which takes place in the forward direction as well as reverse direction simultaneously, is called as reversible reaction. Such reactions are generally shown by, or we can say here represented by arrow. ठीक है, this kind of arrow we have to use here. Mostly these reactions are carried out in closed vessel, or we can say here closed system. I will tell you what is meant by closed system, open system, okay, in short time. ठीक है, mostly these reactions are they are carried out in a closed vessel. Then and then these reactions will be possible. ठीक है. Then we can say chemical equilibrium can be achieved in such reactions, जो कि हमें irreversible reactions में नहीं मिलता है. केमिकल इक्विलिब्रियम हमें जो मिलेगा, इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए इनके जो एग्जांपल्स हैं, वी कैन गिव एग्जांपल्स लाइक H2 gaseous reacts with I2 gaseous, it gives yes twice HI, it is also present in a gaseous state. Then CH3COO, yes. Then again if you write here acetic acid का एग्जांपल दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में. Yes, so if you take here acetic acid, then when we put in a water, then we can get the equilibrium here, and the formation of CH3COO minus यहाँ पे मिलेगा, जिसका नाम है एसीटेट आयन, और ये है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाटर में हो जाएगा डिसोशिएट और प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन को. तो ये यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो H प्लस आयन अकेला कभी नहीं रहता है. H प्लस आयन इट विल कंबाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस हियर हाइड्रोनियम आयन. H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ओके, सो इन दिस वे this is again an example of the reversible reactions. The most important thing is that
रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमें केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये बात को आपको ध्यान में रखने का है. Reversible reactions are mostly artificial, so we can also add these points here. So we can write here, these reactions are artificial reactions which we have to do in the lab. They are not natural. ठीक है. In the same manner, if we have to write about the irreversible reaction, तो क्या हमें यहाँ पे लिखना है? चलिए देखते हैं. The reactions which takes place only in a single direction, namely from reactant to product. So I will write here, the reaction which takes place only in a single direction, namely from reactants to products, is called, yes, irreversible reaction. ठीक है. तो इनका जो होगा डायरेक्शन, ये मतलब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन यहाँ पे होगा. So they can generally shown by the arrow which you know. So such reactions are represented by arrow. ठीक है. These reactions are carried out in open or closed system. I will use the word here. यहाँ पे भी आपने अगर सिस्टम कहा तो भी चलेगा. Now I will tell you what is the meaning of the open system as well as closed system shortly. ठीक है. Okay, then the next point we have to write here, chemical equilibrium जो है ये हमें यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा. Chemical equilibrium cannot be obtained. ठीक है. These reactions are generally natural. Okay, so I will write here, these reactions are generally natural. Mostly naturally होते हैं ये सभी reactions. Okay, then for example we can say here, if you carry out the decomposition of calcium carbonate, in a open system, point to be noted, in open system मतलब क्या कि in a open flask, तो क्या होगा यहाँ पे, there is a formation of calcium oxide which is solid, plus यहाँ पे form होगा carbon dioxide. Okay, this is the one example. Then पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, तो यहाँ पे मिलेगा आपको KCl प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा O2. KCl is solid, O2 is gaseous. So we are getting here the kind of a reaction like this, and these are nothing but the irreversible reactions. We can say many more examples we can give here. Okay, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे और एक बात आएगी, these reactions will go to completion, और ये जो होती है this reaction will never go to completion. So these are the some basic differences you should know
between the reversible as well as irreversible reaction. All these things you have to note down properly in your notebook. Now, it is very important to know that what is meant by open system, closed system. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. लेकिन असल में क्या होता है सिस्टम? Yes, then you can say here the part of the physical universe, the part of physical universe which is under thermodynamic study is called system. The part of the physical universe. For example, मान लीजिए कि ये जो मेरा यहाँ पे रूम है ये है लैब और मैं यहाँ पे लैब में कुछ कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स. सो आई हैव अ फ्लास्क इन विच वाटर इज प्लेस्ड एंड दैट फ्लास्क इट कंटेन हॉट वाटर. नाउ आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद दैट वाटर. सो ये जो है फ्लास्क में रखा हुआ पानी ये है हमारे लिए सिस्टम. और फिर जो आजू बाजू का जो एरिया है like you can say here a fan, then the table on which we will put the container, या फिर जो सराउंडिंग यहाँ पे जो भी कुछ है that is known as a surrounding. So system क्या होता है? The part of the physical universe which is under thermodynamic. thermo का मतलब होता है heat and the meaning of the word dynamic is nothing but the change. तो क्या heat changes हो रहे हैं उस फ्लास्क में, तो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिस्टम में. द पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, यू नो दिस नथिंग बट द फिजिकल यूनिवर्स फॉर अस. तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. सिस्टम के होते हैं 3 टाइप्स. तो यहाँ पे देखिए ओपन सिस्टम में बोलता हूँ आपको. ओपन सिस्टम क्या होता है? सपोज दिस इज द फ्लास्क, ठीक है, और इस फ्लास्क में हमने रखा है यहाँ पे हॉट वाटर. सपोज दिस वाटर इज देयर, इट इज नथिंग बट द हॉट वाटर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा? सी वाटर इज हॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बट आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो गेट कूल. एज आई टोल्ड यू, तो ये जो फ्लास्क में हमने रखा है पानी, इसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे सिस्टम. और ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सराउंडिंग. एज आई टोल्ड यू, जो भी होता है सिस्टम के अराउंड दैट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. द रेस्ट पार्ट, रेस्ट म्हणजे उरलेला, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम अदर देन, सॉरी, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग से क्या बनेगा? बनेगा यूनिवर्स. इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट ईयर, बट दिस इज द बेसिक आइडिया यू शुड नो अबाउट दिस. सो द पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स विच इज अंडर thermodynamic study is called as the system. Rest part of the universe other than the system is called as the surrounding. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा चलता रहता है एक्सचेंज. किस चीज का? ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो सो वी कैन से हियर, यहाँ पे तो हीट होगा एक्सचेंज. हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वी कैन से सिंपली देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ठीक है ना? कैसे? हॉट वाटर अगर हमने यहाँ पे रख दिया, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट कूल. द रीजन इज दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सराउंडिंग. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हीट हो रहा है एक्सचेंज. साथ ही साथ जो वाटर वेपर्स है, यहाँ पे वाटर वेपर क्या है? इट्स अ फॉर्म, यू नो, इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर, है ना?
तो वाटर वेपर यहाँ पे क्या है, इट इज नथिंग बट अ मैटर। सो यहाँ पे मैटर भी हो रहा है एक्सचेंज, सो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी अगर हो रहा है एक्सचेंज, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओके, सो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज both the matter as well as energy with the surrounding is called as open system. The system which can exchange both the matter and energy with the surrounding is called as open system. For example, hot liquid kept in open flask is an example of a open system. Then closed system, क्या होता है ये क्लोज सिस्टम? इमेजिन कीजिए अगर हमने यही हॉट वाटर जो है रखा हुआ था पहले, इसमें इसी कंटेनर को अगर हमने यहाँ पे बंद करके रख दिया, इसको हमने सील किया है, देखिए इस कंटेनर को, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो एनर्जी तो होगा एक्सचेंज, लेकिन वाटर वेपर, देखिए ये है सिस्टम और ये क्या है, ये सराउंडिंग वाला एरिया। तो यहाँ पे मैटर जो है, ये मैटर इधर एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फ्लास्क को बंद करके रखा है। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। सो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली द एनर्जी, सो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली द एनर्जी बट not the matter with the surrounding is called as closed system. The system which can exchange only the energy but not the matter with the surrounding is called as a closed system. इसका और एक टाइप भी यहाँ पे आएगा जिसको मैं बोलूँगा isolated system. इमेजिन कीजिए अगर यही हॉट लिक्विड हमने रखा थर्मस फ्लास्क में, तो क्या होगा, देखिए, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जो है जो हीट को पास नहीं होने देगा। देखिए अगर हमने इसको पैक करके रख दिया, ये है यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ और इसके चारों तरफ अगर हमने थर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल पुट कर दिया इसके अराउंड, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये है, समझो वो थर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पे जो हॉट लिक्विड रखा है और ये जो है ये है थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल। तो ऐसे में यहाँ पे ना तो एक्सचेंज होगा एनर्जी का और ना ही एक्सचेंज होगा मैटर का। ऐसा जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हॉट लिक्विड kept in a thermos flask is an example of an isolated system. Now from these examples you must understand what is the concept of open system and closed system. फिलहाल ये हमारे लिए यही यहाँ पे दो चीज़ें काम की है. In the next year we have to see in details about this in the chapter chemical thermodynamics. Okay, तो देखिए, if you put the calcium carbonate, if you put here calcium carbonate in closed container, calcium carbonate if you keep in a closed container at a high temperature, I will say here at high temperature, calcium carbonate present in a solid state. अगर हमने इसको रख दिया क्लोज कंटेनर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा पता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा डीकम्पोजिशन और आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि होता है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट. ओके,
ये होता है डीकॉम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें एक ही रिएक्टेंट से आपको 2 या 3 अलग अलग क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स. दैट इज नोन एज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. सो if we put here calcium carbonate in a closed container at a high temperature, and if we put for a long time, then what will happen? There is a decomposition of calcium carbonate and there is a formation of calcium oxide and carbon dioxide, and after long time you can see the concentration of calcium carbonate, I will write here concentration of calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide remains unchanged. अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखा, फॉर लॉन्गर टाइम एट सेम, मतलब कौन से टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पे जो होगा ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि होता है सॉलिड स्टेट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट. कैल्शियम ऑक्साइड म्हणजे चूना, तोच, नो दैट वेरी वेल. ओके, सो ये हमने यहां पे लिखा है क्लोज कंटेनर के लिए. नाउ दिस रिएक्शन, दिस is an example of reversible reaction. देखिए यहां पे एक्चुअली हुआ क्या. कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा डिकम्पोजिशन, तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, at a high temperature. I'm telling you. Then after some time calcium oxide and carbon dioxide, they will react back to produce calcium carbonate. After some time the rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction. Then we can say that chemical equilibrium is reached. ठीक है. Now if you do the same reaction in an open container में अगर हमने यही रिएक्शन कराया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा. कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हो जाएगा डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट, ये सॉलिड और ये है सॉलिड. कार्बन डाइऑक्साइड ओपन जब रहेगा कंटेनर, तो यहां से एस्केप होके बाहर निकल जाएगा. कहां पे जाएगा वो? यस, ऑब्वियसली इन द सराउंडिंग. तो यहां पे CO2 प्रेजेंट नहीं होगा. तो ऐसे में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे हो सकता है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ yes, irreversible reaction. ठीक है. So the same reaction if you carry in the different systems, then their nature will change. पहला वाला था रिवर्सिबल, दूसरा वाला कौन सा है? irreversible. Okay, I think now you understand this point properly. Now here जैसे कि यहां पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम और लाइम. व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट ग्लोज ब्राइट white, and this term, it was, this property, it was used in the theater for the lightning purpose. That's why वहां से ही ये जो phrase है in the limelight ये प्रोड्यूस हुआ.
you know that when the peoples they go to watch the cinema, तो ऐसे में यहाँ पे क्या था, बहुत सारा limelight was there. So this is the phrase. मतलब क्या, this shows the popularity of any actor or actress, you can say here. So this phrase is came from this point only. कैल्शियम ऑक्साइड को हीटिंग करने के बाद प्रोड्यूस होता है ब्राइट कलर का व्हाइट लाइट. दैट्स व्हाई द फ्रेज इज देयर नोन एज इन द लाइमलाइट. ठीक है, सो नोट डाउन दिस थिंग्स. Now see, the chemical equilibrium is having many examples, but two examples have been mentioned in your textbook. तो उसमें से जो पहला है, you know that oxyhemoglobin. Hemoglobin in the blood of ह्यूमन बॉडी. देखिए यहां पे क्या होता है, यू नो दैट इन द ब्लड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी. तो ये जो होते हैं आरबीसी का मतलब जानते होंगे आप लोग, रेड ब्लड सेल्स. तो इनमें होता है प्रेजेंट हीमोग्लोबिन. ओके, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन इनसाइड, then hemoglobin it will react with the oxygen molecules, actually 4 oxygen molecules, to form here oxyhemoglobin. ठीक है, तो ये है यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन. स्पेलिंग सही है ना, HAE है ये ना, करेक्ट. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो देखिए हीमोग्लोबिन के लिए हमने सिंबल यहां पे यूज किया है, वो है Hb. इट विल कंबाइन विद द 4 O2 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हियर ऑक्सीहीमोग्लोबिन. नाउ सी कैसे यहां पे आएगा इक्विलिब्रियम. व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स, सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई, at that time oxygen will combine with the hemoglobin to produce here oxyhemoglobin and the equilibrium is established. ठीक है, when the concentration of hemoglobin oxygen is lowered, कहां पर, देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे it will go to the tissues, or the cells of our body जहां पे ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा. सो एट दैट प्लेस देयर इज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. सो एट दैट टाइम दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन इट गेट डिसोशिएट बैक टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. तो यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड वी कैन गेट हियर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रेफ्रिजरेटर it takes place. ठीक है, and how it is based on the concept of chemical equilibrium. Taken up in the next lecture. So see you in the next lecture. Goodbye.